हे हाय गाइस। ये कोर्स का ये लास्ट लैब है जिसका नाम है बिल्ड ए डेटा वेयरहाउस विद BigQuery। ये चैलेंज लैब है जिसका कोई सॉल्यूशन दिया नहीं, हमको बस करना है और सॉल्यूशन निकलना है। ठीक है, तो मैंने लॉगिन फॉगिन सब कर लिया। आप देखता हूँ क्या बोल रहा है ये। In a challenge lab, you are given scenario and set of tasks. Instead of following step by step instruction, you will use the skills learn from this lab in this course to figure out how to complete the task on your own. An automated scoring system shown on this page will provide feedback on whether you have completed your task correctly or not. When you are at a challenge lab, you will not be taught new Google Cloud concept. You are expected to extend your learned skill like changing default values and reading and researching error messages to fix your own mistakes. To score 100%, you must successfully complete all tasks within the time period. सेटअप तो मैंने कर लिया। चैलेंज सिनेरियो: you are part of an international public health organization which is tasked with developing a machine learning model to predict the daily case count for countries during the COVID-19 pandemic. As a junior member of the data science team, you have been assigned to use your data warehousing skill to develop a table containing features for the machine learning model. Okay, you are expected to have the skills and knowledge for this task, so don't expect step by step guides to be provided. फिर नोट करने बोला हुआ है, यू हैव बीन असाइंड रैंडम टास्क फ्रॉम द सेट ऑफ टास्क, प्लीज रेफरेंस दिस form ID, form 11 from 1 and respective task number while reporting any issues. Requesting assistance with this task or provided any feedback. सो टास्क वन जो है ये बोला हुआ है कि क्रिएट ए टेबल पार्टीशन बाय डेट. द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस मशीन लर्निंग मॉडल विल बी द Oxford Policy Tracker table in the COVID-19 government response public dataset, which contains details of different actions taken by government to curb the spread of COVID-19 in their jurisdictions. Given in the fact that there will be model based on a range of time periods, you have to create a data set and then a create date partition version of the Oxford Policy Tracker table in your newly created data set with an expiry time set to 1080 days. While creating a table, you have also been instructed to exclude the United Kingdom, Alpha 3 code, GBR, then Brazil, Canada, and the United States of America, as this will be subject to more in-depth analysis through nation and state specific analysis. And then create a new dataset COVID and create a table dataset partition by date with an expiry of 10 days date. The table should initially use the scheme defined for the Oxford Policy Tracker in the table. So इधर एक डेटा सेट ऑलरेडी है, मतलब टेबल जो है ये ऑलरेडी है इधर. इधर मैंने लॉगिन कर लिया, क्वेरी में चाहता हूँ. और इधर मैंने खोला है ये COVID-19 रेस्पॉन्स. इधर ऑलरेडी ये डेटा सेट है हमारा ऑक्सफोर्ड पॉलिसी टेकर. ये स्कीमा आप लोग देख सकते हैं. ये अल्फा 3 कोड है, मतलब ये फील्ड नेम और कॉलम नेम्स है. बट लेकिन इसमें अगर प्रीव्यू करोगे तो अल्फा 3 कोड में वो कनाडा, यूएसए सब कुछ होगा. तो हमको एक्सक्लूड करके वो एक मतलब डेटा सेट बना के उसको कॉपी करना है. तो करते हैं, फिर एक डेटा सेट बनाते हैं. डेटा सेट का नाम देने बोला है कोविड, आप देख सकते हो. एंड देन क्रिएट टेबल ऑक्सफोर्ड पॉलिसी टेकर. ठीक है, पहले डेटा सेट बना लेता है कोविड.
बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं जो डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद इसके बाद इस डेटा सेट में एक टेबल क्रिएट करने बोला है, पार्टीशन टेबल वो भी होना चाहिए। तो हम एसक्यूएल के थ्रू ये बना रहे हैं, जो टेबल बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस टेबल कोविड डॉट ऑक्सफोर्ड पॉलिसी टेकर। प्रोजेक्ट आईडी मतलब देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेट हुआ है। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है और अलग मतलब अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करके इधर दे सकते हो, ठीक है, डेटा सेट के पहले। उसके बाद पार्टीशन बाय डेट ऑप्शंस ऑप्शंस देना है टेबल एक ओ सेट में टेबल एक्सपिरेशन डेट डेज आई थिंक डेज इज इक्वल टू 1080 एज। अब ऑप्शन में बहुत कुछ डाल सकते हो, जैसे पार्टीशन का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ टेबल एक्सपायरेशन डेट डाला है एज करके। हमको क्वेरी रन करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टेबल का, ये ओरिजिनल टेबल है ना हमारा, तो इसका हमको स्कीमा देखते हैं, सॉरी डिटेल्स देख के ये टेबल आईडी कॉपी करते हैं, तो इधर से पूरा डेटा ले रहे हैं। लेकिन हमको वो जो अल्फ़ा थ्री कोलम है ना, अल्फ़ा थ्री कोड मेन ओरिजिनल जो टेबल है उसमें उसको एक्सक्लूड करके लेना है ना, उस वैल्यूज को। नॉट इन कैनाडा कैन देन BRA ब्राज़ील देन USA। इसको आप सिंगल कोट्स में भी रख सकते हो, डबल कोट्स में भी रखते हो, स्ट्रिंग ही लेकर, ठीक है। USA और क्या था, GBR, तो GVR, ठीक है। तो ये जो अभी क्वेरी है, ये क्वेरी ये वैल्यू को एक्सक्लूड करके पूरा डेटा को लेगा अगर हम लोग रन करें तो। ये जो क्वेरी है, ठीक है। पर इसका जो रिजल्ट होगा उसका लेके हम एक टेबल बना रहे हैं, ये टेबल ऑक्सफोर्ड पॉलिसी टेकर, और उसको पार्टीशन कर रहा है, पार्टीशन बाय डेट देके, डेट के हिसाब से। और इसका शायद कुछ ये होगा, 1 मिनट इसका मतलब मैं देख लेता हूँ इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, ठीक है। सो इसका जो ये है वो ऑप्शन जो था ना, उसका जो मतलब ये था, करेक्ट सिंटेक्स था पार्टीशन एक्सपायरेशन डेट। एंड डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। अब डिस्क्रिप्शन जो मतलब ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं टेबल के बारे में, जो ऑक्सफोर्ड पॉलिसी का टेबल है, ये एक्सपायर हो जाएगा इस इतने टाइम में, तो आप रन कर सकते हो। तो आप देखोगे कि इसके अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा अभी। ये देखो ऑक्सफोर्ड पॉलिसी ट्रेकर, ये टेबल क्रिएट हो चुका है। दिस इज अ पार्टीशन टेबल जो हमको बोला गया था। और अभी इसका अगर डेटा भी चेक करोगे ना तो वैल्यूज़ नहीं है, CAN कनाडा ब्राज़ील वो सब नहीं है। डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो। टेबल टाइप है पार्टीशन, पार्टीशन बाय है डेट, पार्टीशन फील्ड डेट, पार्टीशन एक्सपायरेशन 1080 डेज, पार्टीशन फिल्टर, ये डिटेल्स चेक कर सकते हो। प्रीव्यू में डेटा भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहला टास्क हमारा कम्प्लीटेड। चेक में प्रोग्रेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं उसके बाद। तो ये पहला टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड टास्क जो बोल रहा है
Add new columns to global mobility tracker data table. Global mobility tracker data table. In this tab, you need to add columns for population, country area, and a record column name mobility. That will take six input fields representing average mobility data from the last six columns of the mobility report table from the Google Cloud, like COVID-19 multiple data set. Okay. It is important to follow the column names and data types that have been specified when updating the schema. So dataset named COVID data contains a table named Global Mobility Tracker Data in which update the table to add new columns with the appropriate data type to ensure alignment with the specific provided to you. ये मोबिलिटी जो है रिकॉर्ड मतलब एरे है ना स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं ऐसा कुछ है डेटा टाइप रिकॉर्ड है मतलब बेसिकली स्ट्रक्ट ही है उसके अंदर ये बाकी सब एवरेज रिटेल एवरेज ग्रोसरी एवरेज पार्क ये कॉलम होगा ठीक है तो बनाते हैं ठीक है द डेटा सेट नेम कोविड डेटा उसके बाद क्या बोला इधर डेटा सेट ऑलरेडी क्रिएटेड है ना ग्लोबल मोबिलिटी ट्रिकर डेटा इसमें कुछ कॉलम्स ऐड करना है जो कि है नहीं जो है इसमें मतलब मेन जो सोर्स जो डेटा इधर है जो सोर्स टेबल है देखते हैं क्या करने बोला है फिर से ये जो कॉलम नेम है उसको ऐड करना है तो इसके लिए हम पहले मैं क्वेरी बना लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ ठीक है सो ये मैंने क्वेरी बनाया है आपको दिखाता हूँ पहले ऑल्टर टेबल करना है ऐड कॉलम करने से पहले मतलब हमको पता है ना कि एसक्यूएल आपको होना मतलब जानना चाहिए क्योंकि एसक्यूएल ये जो सिंटेक्स है ना ऑल्टर टेबल ये जो टेबल को ऑल्टर करता है और कॉलम को मॉडिफाई और ऐड करता है तो हमने जो ऐड कॉलम ये पॉपुलेशन कॉलम इंटीजर 64 ऐड किया है कंट्री कोड भी ऐड किया है और मोबिलिटी और जो स्ट्रक्ट टाइप है तो स्ट्रक्ट के अंदर ये एवरेज रिटेल एवरेज ग्रोसरी सब फ्रूट इसमें गया है तो अभी रन करता हूँ ठीक है और कोविड डेटा ग्लोबल मोबिलिटी ट्रैकर डेटा कोविड डेटा के अंदर डेटा सेट के अंदर जो ग्लोबल मोबिलिटी ट्रैकर है इस टेबल को मॉडिफाई करना था इसीलिए ये टेबल का नाम इधर दिया है ठीक है आप रन करते हैं तो पहले वो मतलब ये सब कॉलम्स था नहीं आप चेक करते हैं कि नहीं रिफ्रेश करते हैं स्कीमा चेक करते हैं आप देख सकते हो मोबिलिटी भी आ गया टाइप और जो मतलब कॉलम ऐड करने बोला गया था वो भी हो चुका है पॉपुलेशन कंट्री एरिया ये भी तो टास्क 2 हमारा कंप्लीट हुआ आप जो है टास्क 3 ऐड कंट्री पॉपुलेशन डेटा टू द पॉपुलेशन कॉलम A colleague working on an ancillary task has provided you with the SQL they used for updating the daily
new case data in a similar data partition table through a join with COVID-19 geographic distribution worldwide. Table from this is useful table that contains a range of data including recent national population task which you need to populate the population column in the table provided in task description. अच्छा, ये जो टेबल है अपडेट डेटा सेट टेबल नेम T0 सेट T0 पॉपुलेशन T2 ये टेबल ओके। हम्म। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट country code unique territory code and prop 2000 from this data table. Okay, as T2 where T3 alphabet code and T2 country territory code. Okay, so the data set name COVID data contains one table considered COVID tracker data in which add the country population data to the population column। तो पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं ना। ये जो ओरिजिनल डेटा सेट है ये ओरिजिनल डेटा सेट होगा। इधर से हम डेटा को पॉपुलेट करके उस पॉपुलेट कोविड डेटा के अंदर जो टेबल है ना उसके अंदर पॉपुलेट करना है। ये है ओरिजिनल टेबल। ये डेटा सेट है ये ओरिजिनल टेबल। डिटेल्स चेक कर सकते हो प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, ये कंट्री टेरिटरी कोड है और ये है। तो अब जब इस क्वेरी को अब रन करोगे रन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये टास्क भी हो चुका है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो बोल रहा है इस टेबल का जो दो कॉलम है ना ये कंट्री टेरिटरी कोड ये इसके जो टेबल हमारा जो बनाया था इसके साथ इक्वल है अल्फा 3 कोड के साथ। ठीक है, ये क्वेरी मैंने बनाया अपडेट। देखिए अपडेट इसमें डेटा सेट जस्ट चेंज किया मैंने कोविड डेटा जिस टेबल को अपडेट करना था और ये कॉन्सोलिडेट कोविड ट्रेकर डेटा। इसमें एक कॉलम था पॉपुलेशन राइट। पॉपुलेशन कॉलम को हमने ऐड करा था नया बनाया था उसको अपडेट करना है किसके साथ पॉप डेटा 2019 कॉलम के साथ जिसकी जो कि इस टेबल में ओरिजिनल टेबल में T2 में। तो वही करा हमने और कंडीशन दिया है ये और ये इज इक्वल टू। तो अभी जो इस टेबल का ये पॉप डेटा 2019 है वो इस कॉलम में अपडेट हो जाएगा जो कि मैंने रन करके देखा है ये अपडेट हो चुका है। अभी अगर आप रिफ्रेश करोगे ये वाला टेबल और प्रीव्यू में जाओगे और पॉपुलेशन देखोगे तो अपडेट हो चुका है देखना पॉपुलेशन। अरे ढूंढने में टाइम यार चला जाएगा। कोलम कहाँ है यार पॉपुलेशन कोलम कहाँ है। ये पॉपुलेशन कोलम देखो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो टास्क थ्री हमारा कंप्लीटेड हो चुका है थी। अब टास्क फोर जो है ऐड कंट्री एरिया डेटा टू द कंट्री एरिया कॉलम।
और उसी को मतलब जो हमने कंट्री ऐड मतलब वो जो कॉलम क्रिएट किया था और वैल्यू लेना है इससे ना, इस सोर्स टेबल से, जो कि मैं खोल के आपको दिखा नहीं रहा हूँ अब। ये तो क्या करना है इसमें, एक क्वेरी बनाना है ना, अपडेट करना है बस। तो मैं पहले क्वेरी को रेडी करता हूँ। नहीं यार, दिखाई देता आपको यार। कंट्री नेम एरिया, किसके साथ अपडेट करना है? कोविड डेटा, ऐड द कंट्री एरिया डेटा टू द कंट्री एरिया कॉलम। ओके, कंट्री एरिया डेटा, कंट्री एरिया डेटा ये फ्लोट वैल्यू में, कंट्री एरिया डेटा फ्लोट वैल्यू में है ना, उसको अपडेट करना है इस टेबल में। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इधर पेस्ट कर देता हूँ। और इसका, इस टेबल का नाम क्या था? कंट्री एरिया हमने मतलब कॉलम बनाया था ना, देख लेता हूँ कौन सा कॉलम लिया था। हाँ, कंट्री एरिया लिया था। तो एक काम करते, टी जीरो कंट्री एरिया, टी टू भी होगा कंट्री एरिया, वो इस ये तो नहीं है ना डेटा शीट, डेटा शीट तो ये है, ये वाला। कॉपी करके सारी इसमें आना है और इसमें पेस्ट करना है। उसमें कौन सा कॉलम है? कंट्री नेम, कंट्री कोड, कंट्री एरिया। और हमारे टेबल में कंट्री नेम, तो उसको कंट्री नेम से ये कर देते हैं ना, कंट्री नेम। और इधर भी कर देते हैं कंट्री नेम। पेस्ट कर देते हैं। अब इसको रन कर देते हैं। फिर इधर से, इधर का जो कंट्री नेम का मतलब कंट्री नेम एरिया जो है ना, कंट्री नेम एरिया, सॉरी कंट्री एरिया का जो वैल्यू है वो इस टेबल का कंट्री एरिया कॉलम में पॉपुलेट हो जाएगा। हो चुका है। अब देखते हैं टास्क फोर्स को चेक करके। अब देख सकते हो ये वाला टास्क भी कंप्लीटेड हो चुका है। अब ये ट्रिप्स एंड ट्रिक दिया है जो कि हमने पहले देखा नहीं, अब देख सकते हो। और इसी इसको कंप्लीट करने के मतलब इसको हमने कंप्लीट कर लिया तो पूरा जो हमारा बैच था ये कंप्लीट हो चुका है। इसका बिल्ड डेटा वायरस विद बिग क्वेरी का, इसका आईडी था शायद GSP340। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और बैच हमको मिल चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम फिनिश